دنیا کو بحران سے بچانے کے لیے اسلام-آباد کارڈ تیار۔ پاکستان نے جنگ بندی فارمولا امریکہ اور ایران کے حوالے کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق منصوبے میں آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز شامل۔ رائٹرز نے ذرائع سے بتایا پاکستان کی طرف سے منصوبے میں 2 مرحلوں کا طریقہ کار تجویز کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی ہوگی، بدلے میں ایران آبنائے ہرمز کھول دے گا۔ دوسرے راؤنڈ میں وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 15 سے 20 دن کا وقت دیا جائے گا۔ اس معاہدے میں آبنائے ہرمز کے لیے علاقائی فریم ورک شامل ہوگا اور حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ معاہدہ آج سے نافذ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی نائب صدر جیری وینس، اسٹیو وٹکاف اور عباس عراقچی سے رابطے میں رہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی اسلام آباد اس وقت سفارتکاری کا دارالحکومت بن چکا ہے۔ ایران نے عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز کھولنے سے انکار کر دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا تہران ڈیڈ لائن قبول کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ قبول نہیں کرتا۔ مستقل جنگ بندی کے لیے امریکہ میں تیاری کا فقدان ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایران کو فوری جنگ بندی کی تجویز مل گئی ہے جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا ایران جنگ بندی کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں، فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ امریکی پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا مشن یورینیم چرانے کا بہانہ ہو سکتا ہے۔ پائلٹ کی موجودگی کا دعویٰ مشن کے مقام سے بہت دور ہے۔ جہاں امریکی فوج نے اترنے کی کوشش کی وہاں پائلٹ نہیں تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کا ثالثوں کے ذریعے بھیجا گیا 15 نکاتی منصوبہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ جانتے ہیں کون سی سرخ لکیر پار نہیں کرنی۔ بات چیت شروع ہوتے ہی ہمارے جوابات تیار تھے، مناسب وقت پر اعلان کریں گے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف سید ماجد خادمی شہید۔ تہران سمیت ایران کے 12 شہروں میں بمباری، 34 افراد شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی تہران کے شہر بہارستان میں 2 رہائشی مقامات پر حملہ کیا گیا، 6 بچوں سمیت 23 افراد شہید ہوئے۔ فضائی حملوں میں تہران کی شریف یونیورسٹی بھی نشانہ بنی، مسجد کو نقصان پہنچا۔ ایران نے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ حیفا میں 15 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 2 اسرائیلی ہلاک، 11 زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل لگنے سے 5 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ وہ بیان میں امریکی فوجی تنصیب پر ڈرون حملہ۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے بتایا امریکی مواصلاتی نظام اور جنگی سامان پر حملے کیے گئے۔ کویتی حکام کا کہنا ہے شمال میں رہائشی علاقوں پر پروجیکٹائل گرنے سے 6 افراد زخمی ہوئے۔ فجیرہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی عمارت کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے ایران سے کیے گئے حملوں کو روکا جا رہا ہے۔ معاہدے میں آبنائے ہرمز پر مکمل آزادی کی ضمانت لازمی ہونی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش نے کہا آبنائے ہرمز کو کسی ملک کا یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا ادھوری جنگ بندی نہیں چاہتے، تنازع کا پائیدار حل ضروری ہے جس میں ایران کے ایٹمی پروگرام، میزائل اور ڈرون حملوں کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے۔ بنیادی مسائل حل کیے بغیر کوئی معاہدہ کیا گیا تو مشرق وسطی پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور غیر مستحکم ہو جائے گا۔ امریکی صدر پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 10 بجے فوجی قیادت کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران جنگ سے متعلق سوالوں کے جواب دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، سوشل میڈیا پر لکھا منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا، آبنائے ہرمز کھول دو ورنہ جہنم جیسی زندگی گزارو گے۔ امریکی صدر نے آج ایران سے معاہدے کا قوی امکان ظاہر کر دیا۔ فاکس نیوز کے صحافی کے مطابق صدر ٹرمپ نے بتایا ایران سے مذاکرات جاری ہیں، جلد معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ امریکی صدر کی دھمکیوں پر روس کا اظہار تشویش۔ ترجمان کرملن کا کہنا ہے پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔
हालात इंतहाई खतरनाक हैं, जंग का दायरा फैल चुका है। जंग के मनफी असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ रहे हैं। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा का कहना है, धमकियों से जंग खत्म होगी न अमन कायम हो सकता है। बिजली घरों और अवामी तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान और गैर मुहज्जब जबान पर अमरीकी सेनेटर्स बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर ने ट्रंप को खतरनाक और जहनी तौर पर गैर मुतवाज़िन शख्स करार दिया। एक्स पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान इंतहाई तशवीशनाक है। कांग्रेस फौरी इकदाम उठाते हुए इस जंग को खत्म करे। चक शूमर ने लिखा कि लोग ईस्टर मना रहे हैं और ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। टेलर ग्रीन ने कहा, ट्रंप पागल हो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, वो काबीना में होते तो 25वीं तरमीम लागू करने की बात करते, जिसके तहत सदर की माजूरी की सूरत में नायब सदर जिम्मेदारियां संभाल सकता है। ग्रेगरी मैक्स ने कहा, ट्रंप ने गैर मुहज्जब और बेरब्त जबान इस्तेमाल की। सेनेटर एडवर्ड मार्की ने कहा, धमकी आमेज बयान से आबनाए हुर्मुज नहीं खुल सकता। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फराहमी। आईजी इस्लामाबाद ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम का कहना था, ज़र मुबादला बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी इंतहाई अहम है। उम्मीद है मंसूबे की मुल्क भर में तकलीद की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जेयूआई का एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान का कहना है, जुमे को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से आम आदमी के सुकून छीन लिया गया। मौलाना ने कहा, हमने मौजूदा सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास का मुतालबा किया। सबको नहीं बता सकते तो अवामी नुमाइंदों को ही बताएं कि मुल्क कहाँ खड़ा है। कौमी और सूबाई असम्बलियों से गैर शरई कवानीन पास करवाए जा रहे हैं। कुछ कवानीन सरीहन आइन के खिलाफ। ट्रंप की धमकियां जंगी जराइम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ हैं। ईरान किसी भी जारहियत का फैसला कौन और फौरी जवाब देगा। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का रद्द अमल। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं, तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर बंकर शिकन बमों से हमला ट्रंप की हमाकत से हुआ। वो ये नहीं समझते कि कंक्रीट तबाह करने से ईरानी इल्म खत्म नहीं किया जा सकता। नायब वजीर आजम इसाक डार और जापान के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी जरूरत पर जोर। जापानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन के फरोग के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने खिताब में कहा, मफाहमती यादाश्त अदालती शोबे में ताउन की कलीद साबित होगी। हमें एक दूसरे के अदालती तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। चीफ जस्टिस आईनी अदालत तुर्की का कहना था, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को रोशन देख रहा हूँ। पाकिस्तान और तुर्की में मिसाली भाईचारा है। पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। जेल में बानी पीटीआई का मुनासिब इलाज हो रहा है, ना ही इंसाफ मिल रहा है। चीफ जस्टिस साहिबान से दरखास्त है, इंसाफ फराहम करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज 24वीं मरतबा इंसाफ की उम्मीद ली अदालत आए, लेकिन मायूसी का सामना करना पड़ा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मौजूदा हालात में पूरी रियासत का निजाम मफलूज हो चुका है। सलमान सफ्दर ने कहा, कल जमानतों की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। 3 माह से जायद का अरसा गुजर गया, क्लाइंट से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मोटरसाइकिल मालिक को 2000 रुपए माहाना अदा करेंगे। एक्साइज की वेबसाइट पर ऐप मौजूद है। अगर बैंक अकाउंट आपके शनाख्ती कार्ड पर होगा तो ही पैसे मिलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मोटरसाइकिल अपने नाम कराने के लिए ट्रांसफर फीस खत्म कर दी। एक्साइज के दफातर हफ्ते और इतवार को भी खुले रहेंगे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत ताजिर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक मुशावरत। मुराद अली शाह ने कहा, विफाक ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के अहकाम दिए हैं। विफाकी हुकूमत को कहा था, स्टेक होल्डर से मुलाकात के बाद ही फैसला करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का अशियाए खुरोनोश पर फिलहाल असर नहीं पड़ा। पंजाब में फलों, सब्जियों और दालों की कीमतें मुकम्मल कंट्रोल में हैं।
वजीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी कहती हैं वजीर आला मरियम नवाज प्राइस कंट्रोल की खुद निगरानी कर रही हैं। उनकी हिदायत है रिलीफ पैकेज के समरात बराह रास्त अवाम तक पहुंचने चाहिए। अड़तीस मिलीमीटर बारिश ने फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बेनकाब कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। जाली मैजिक शो बंद करें, मेयरशिप के काबिज निजाम से जान छोड़ाना होगी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मौजूदगी में कराची कभी तरक्की नहीं कर सकता। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल, कहा हाफिज नईम मेयर कराची नहीं बल्कि शहर की तरक्की के खिलाफ हैं। हाफिज नईम सियासी बोने बनकर इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जो अपने टाउन्स में कचरा नहीं उठा सकते वो मेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। बन्नू बकाखेल में नादरा ऑफिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस अहलकार रफीउल्लाह और सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। बन्नू के थाना मंडान की हुदूद में दहशतगर्दों की फायरिंग से स्पेशल ब्रांच का पुलिस अहलकार शहीद हो गया। सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव है नाम निहाद सुहेला फरीदी साहब, आप जनाजे में भी शिरकत नहीं करते, तो सिर्फ गालम गलोच की लान तान की तरबियत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज्यादती करेंगे तो फिर हम आपको स्पेयर नहीं करेंगे। अफसोस होता है केपी के अवाम का किन नालायकों से वास्ता पड़ गया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का कहना है सुहेल आफरीदी नाम नहाद चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनके लीडर की तरह वो भी शहादा के जनाजों में शिरकत की जहमत नहीं करते। अवाम जानना चाहते हैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गम में शरीक क्यों नहीं हुआ। वजीर आला केपी के मुअव्वन खुसूसी शफी जान का इख्तियार वली के बयान पर रद्द अमल, कहा शहादा के जनाजों पर सियासत करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। इख्तियार वली की बातें महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। विफाकी नुमाइंदे अवाम पर गिराए गए पेट्रोल बम से मुताल्लिक भी बात करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, सेफ सिटी मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। मोहसिन पुलिसिंग ट्रैफिक और कहना था कि शहरी सहूलतों के निजाम को इंटीग्रेट किया जाएगा। प्लास्टिक सर्जन कैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है? इसे तो 75 साल जेल में रहना चाहिए। गरीब लोगों के साथ ज्यादती करता है। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट में प्लास्टिक सर्जन के किडनी ट्रांसप्लांट करने के खिलाफ केस की समाअत। डायरेक्टर लीगल पंजाब ने बताया मुलजिम इस्लामाबाद सेक्टर 20-17 में गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए गिरफ्तार हुआ। वहां कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं था। डॉक्टर पहले भी ऐसे ट्रांसप्लांट करते पकड़ा जा चुका है, अभी जमानत पर बाहर है। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में कमी। फी तोला सोने की कीमत 1100 रुपए का इजाफे से $4,91,462 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $11 इजाफे से $4,687 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 50 रुपए कमी के साथ 7,754। रावला कोट में बारिश और जालाबारी, कोटली में बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी, लाहौर में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 9 अप्रैल तक बरकरार रहने की तवक्को है। और क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीब अल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा फजर शेख मेहमान, आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।